Hello guys, so today we are going to solve this new question, attribute parser. One of the subscriber commented to solve this. Okay, so today we are going to solve that. Okay, so here they are giving a HTML. Okay, means they are okay, so we will go to the input. Okay, so here they are giving 4 and 3. Okay, this is 4 means attributes and this is 3 means these 3 are queries. Okay, these 3 are queries. Okay, so like we do in raw HTML, like value is equal to hello world, name is equal to name1. Okay, these are the tags. Okay, starting tag and this is the ending tag. Okay, so tag1 dot tag2 means tag1 के अंदर tag2 में this name is equal to name1. Okay, so we have to print the value. Okay, name1, tag1 of name, tag1 of name not found because tag1 has only one attribute, that is value. Okay, so tag1 of value is equal to hello world, and that's the third query. Tag1 of value is equal to hello world. So tag1 of name is not found, so here that's why they are printing not found. Okay, so I have written the solution. So first of all we will go to the logic basics, what we are going to do. Okay, so first I will show you that, and after that we will discuss the code. Okay, so first of all, okay, so I will take this bit much later. Okay, so first of all we are maintaining one vector and one hash map. Okay, means for key value we are maintaining the hash map and one vector for the tags. Okay, so here, okay, so these means these are the starting tag and these are the ending tags. Okay, so we want to take the values inside of these tags. Okay, so first of all we will take this tag name. Okay, this is tag name tag1. Okay, so we will write this tag1 in the vector. Okay, we will push back to the vector tag1. Okay, now we will check there is an attribute or there is attribute present or not, means उधर attribute है क्या नहीं. Okay, अगर attribute होंगे tag1 में, okay, तो हम क्या करेंगे, tag1 डॉट जो भी attribute क्या, अभी attribute क्या है, value. Okay, so इधर ये वाला सिंबल है लगता, tag1 ऑफ value is equal to, okay, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, माउस के साथ कर रहा हूँ यार, संभाल लेना. ओके, 2 मिनट. tag1 ऑफ वैल्यू, जो भी वैल्यू आएगी, अभी tag1 ऑफ वैल्यू क्या है, हेलो वर्ल्ड. ओके, सो वी विल सेव दैट attribute value into the hash map. Okay, so then it will come again second tag, means tag1 is not completed here. Okay, so then we will not remove this tag1, okay, in the vector. So the next tag is tag2. Okay, so we will add again this tag2 here. Okay, in the vector. Now we have to save the attribute and value, means हमें सेव करना है name और name1. ये attribute का नाम है और ये value है. So now I will write, means I will iterate this vector. Okay, I will iterate this vector and create a key like t1 dot t2. Okay, t1 dot t2 and what that attribute name, which attribute name, the attribute का नाम ही name है यार. Okay, so attribute name and I will save that attribute name and value in the map. Okay, so that is the thing. तो अभी हमारे starting tag थे इसीलिए हमने ये कर लिया. Now there is our ending tag now. Okay, so if we came to the end of the tag, अगर हम tag के end में आ गए तो हमें क्या करना है, अभी ये tag1 हमारे वेक्टर में सेव था, तो अभी हमें इसको रिमूव कर देना है. ओके, सो हमने ये रिमूव कर दिया और फिर से tag1 का भी एंड है तो हमने इसके भी रिमूव कर दिया. ओके, तो अगर इसके बाद भी अगर कौन से टैग आएंगे, tag3, tag4, तो सिमिलर प्रोसेस होगा. अगर इसके बाद tag3 आया तो tag3 वेक्टर में ऐड होगा, और अगर उसके कोई एट्रीब्यूट और वैल्यू होंगे तो इधर हैश मैप में अपन सेव कर देंगे. सो ये था बेसिक आइडिया. सो वी विल नाउ गो टू द प्रोग्राम. ओके,
So here we are first of all taking the inputs n and q, because n is the number of tag and q is the number of queries. Okay, so then we have to take the number of tags. For that we are iterating the loop. Okay, so now we are taking this first line. Okay, consider we are taking this first line as an input. So first of all we are taking a character. Okay, a single character, जो भी पहला character आएगा ये लेस देन ऑपरेटर. ओके, सो वी हैव टेकन दैट. ओके, बिकॉज मुझे वो उसको इग्नोर करना था. उसके बाद वी विल सी अबाउट दिस इफ कंडीशन लेटर. ओके, सो ये लास्ट पार्ट में आएगा इफ वाला पार्ट. तो पहले तो आएगा एल्स पार्ट. ओके, सो नाउ वी हैव टू टेक दिस टैग नेम. ओके, सो ये टैग नेम लेने के लिए हमने एक स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल बनाया नेम. ओके, सो हियर वी आर टेकिंग द टैग नेम. ओके, चलो प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको हमने टैग नेम कैसे लिए. So that are the tag names. Okay, tag 1 and tag 2. Okay, because ये else में कंडीशन हैंडल कर रहे हैं तो वो जो एंडिंग टैग्स है वो प्रिंट नहीं हो रहे. ओके, सो आई विल रिमूव दिस. ओके, आई विल रिमूव दिस सी आउट. ओके, सो हमने अभी टैग नेम तो ले लिया. सो आफ्टर दैट वी हैव टू चेक दैट कि टैग ऐसा तो नहीं है, मीन्स स्टार्ट टैग मीन्स ओनली टैग का नेम है बट उसमें कुछ एट्रीब्यूट है या नहीं. तो उसको चेक करने के लिए अगर नेम के एंड में ये ग्रेटर देन ऑपरेटर होगा, कौन सा ऑपरेटर, हाँ चलो ग्रेटर देन ऑपरेटर होगा, तो हम क्या करने वाले हैं, हमें एट्रीब्यूट सेव करने की ज़रूरत ही नहीं है. बिकॉज इस टैग में एट्रीब्यूट नेम और एट्रीब्यूट की वैल्यू है ही नहीं. तो इसीलिए तो हम इधर नेम डॉट पुशबैक में क्या कर रहे हैं, टैग डॉट 1 ग्रेटर देन ऑपरेटर था तो इसको हमने पुशबैक करने के बाद क्या हुआ, टैग डॉट 1 हो गया. सो नाउ वी विल ऐड दिस टैग 1 इनटू आवर वेक्टर. सो वी हैव क्रिएटेड आवर वेक्टर. ओके, सो वो दिखाना भी रहेगा. So we have created our vector tag stat and our hash map like named attributes. Okay, so tag stack is our vector where we are maintaining our tag names. Okay, so here we are adding the tag name into, so इधर comment में लिख देता हूँ मैं adding tag name into vector. Okay, so हमने इस tag के name को vector में add कर दिया. Even अगर इसमें कुछ एट्रीब्यूट और वैल्यू नहीं है. ओके, सो दिस वाज द कंडीशन फॉर द टैग नेम, लाइक ओनली अ टैग नेम, देयर इज नो एट्रीब्यूट एंड नो वैल्यू. सो वैसे कंडीशन के लिए हमने इधर ऐड हैंडल किया कंडीशन. सो हियर वी आर जस्ट एडिंग आवर टैग नेम इनटू द वेक्टर. ओके, so then we will go to the else condition. If our tag name has a attribute and values. Okay, so this is the example. Here we have attribute name and value also. अगर हमारे टैग में एट्रीब्यूट नेम भी है और वैल्यू भी है तो हम क्या, अभी हमारा कंडीशन एल्स में जाएगा. ओके, सो इसमें आने के बाद हम डायरेक्टली क्या करेंगे, जो भी हमने नेम में टैग का नेम लिया था. ओके, सो जो भी हमने टैग का नेम लिया था वो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, हम वो टैग का नेम वेक्टर में ऐड कर देंगे. ओके, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, जैसे कि मैंने बताया था हमें टैग का नेम वेक्टर में ऐड करना ही करना है. ओके, अगर स्टार्टिंग टैग होगा तो. ओके, सो अभी हमने टैग का नेम ऐड कर लिया. सो नाउ अभी हमें इटरेट करना है. कितने बार इटरेट करना है, मीन्स we have to iterate this whole value, means we have to iterate this whole tag. Okay, so अभी इस कंडीशन में तो हमारा इटरेशन एक ही बार होगा because we will meet the attribute and values. Okay, so we have created this 3 variables, attribute name, attribute value, and this is equal. Okay, तो ये so we are taking this these all values, means attribute name, attribute value and this equal sign हम सीन से ले रहे हैं. मीन्स अभी सीन में कैसा आएगा, अभी एट्रीब्यूट नेम है वैल्यू, एट्रीब्यूट नेम को क्या आएगा, वैल्यू आएगा. सो इक्वल को क्या आएगा, इक्वल वाला साइन आएगा. ओके, उसके बाद क्या आएगा, वैल्यू जो भी आएगा नेम 1. ओके, इस टाइप में हम सीन में ले रहे हैं. ओके, बिकॉज वी हैव क्रिएटेड हियर स्ट्रिंग, तो एक एक स्ट्रिंग ले रहे हैं. ओके, सो ऐसा हमने इनपुट ले लिया, एट्रीब्यूट वैल्यू और एट्रीब्यूट नेम और एट्रीब्यूट वैल्यू. ओके, सो इधर मैं कमेंट में लिख देता हूँ टेकिंग एट्रीब्यूट वैल्यू एंड एट्रीब्यूट नेम. ओके, सो हियर वी आर टेकिंग एट्रीब्यूट. अगर इन द एंड ऑफ एट्रीब्यूट वैल्यू, अभी जो भी आएगा एट्रीब्यूट वैल्यू, दिस इज आवर एट्रीब्यूट वैल्यू. इफ देयर इज एट द एंड ऑफ एट्रीब्यूट वैल्यू, इफ देयर इज
ग्रेटर दैन साइन मीन्स अभी यही वाला कंडीशन देख लो ना आप। so, इसी कंडीशन में अभी हमें एंड को क्या मिलेगा, ग्रेटर दैन टैग मिलेगा। तो इस कंडीशन में हमें क्या कर देना है, हमें ब्रेक करना है, एक तो लूप हमें ब्रेक कर देना है। सो वी हैव एडेड ब्रेक इन टू द एंड ऑफ दैट लूप, और इसमें हम क्या कर रहे हैं वो देखेंगे। सो एट्रीब्यूट वैल्यू डॉट पॉप बैक। ओके, सो एट्रीब्यूट वैल्यू डॉट पॉप बैक में क्या होगा, सिर्फ ये एंड वाला जाएगा, ग्रेटर दैन ऑपरेटर जाएगा। ओके, सो फिर से हम एक बार हम पॉप बैक कर रहे हैं, तो अभी हमारा स्ट्रिंग कैसा होगा, HE हेलो WOLD। ओके, तो अभी हम क्या करने हैं, अभी पॉप बैक होने के बाद हमारे जो लास्ट वाला डबल कोट है ये भी हमारा चला जाएगा। ओके, सो नाउ आवर एट्रीब्यूट वैल्यू विल सी लाइक दिस। ओके, तो ये हमारा एट्रीब्यूट वैल्यू है। सो नाउ वी आर टेकिंग एट्रीब्यूट वैल्यू डॉट सबस्ट्रिंग। ओके, तो हम सबस्ट्रिंग कहाँ से ले रहे हैं, इसमें हम एट्रीब्यूट वैल्यू को फिर से काट छाट कर रहे हैं। सो नाउ आवर एट्रीब्यूट वैल्यू विल बी हेलो वर्ल्ड, बिकॉज वी आर टेकिंग द सबस्ट्रिंग फ्रॉम वन पोजिशन। ओके, सो 0 पोजिशन में तो ये डबल कोट है तो ये चला जाएगा। सो देन आवर सबस्ट्रिंग विल बी ओनली हेलो वर्ल्ड। ओके, सो नाउ वी आर पासिंग एट्रीब्यूट नेम, जो भी एट्रीब्यूट नेम होगा वैल्यू। ओके, दिस वैल्यू, एंड ये जो एट्रीब्यूट वैल्यू है जिसको हमने काट छाट करके बनाया है, तो हम इसको किस इंसर्ट वाले फंक्शन को भेज रहे हैं। ओके, सो ये वाला, तो इस फंक्शन में हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, जितने भी टैग नेम्स हमारे वेक्टर में प्रेजेंट होंगे तो उन सबको इटरेट बना के हमें एक फॉर्मेटेड की बनाना है, और उस फॉर्मेटेड की और वैल्यू को हमें सेव कर देना है। ओके, अभी हमारे वेक्टर में 2 टैग्स है समझो, अभी हमारे वेक्टर में टैग 1 और टैग 2 ऐसे 2 टैग नेम्स है। तो ये वाला लूप क्या करेगा, ये वाला लूप क्या करेगा, इस फॉर्मेट में स्ट्रिंग बनाएगा, टैग 1 डॉट टैग 2 डॉट। ओके, तो इस फॉर्मेट में, सॉरी टैग 2 लिखना चाहिए था, टैग 2 डॉट। ओके, तो इस फॉर्मेट में हमने बना दिया। ये वाली कंडीशन कब आएगी, जब ये दूसरा वाला टैग 2 आएगा तब ये वाली कंडीशन आएगी। चलो अभी बताने के लिए ये वाला एग्जांपल अच्छा है, टैग 1 डॉट टैग 2। ओके, सो ऐसा वाला हमारा स्ट्रिंग हो गया। तो अभी इसको हम फिर से क्या कर रहे हैं, पॉप बैक कर रहे हैं। तो अभी हमारा क्या होगा, टैग 1 डॉट टैग 2। पॉप बैक करने के बाद जो लास्ट वाला डॉट है वो चला जाएगा। तो अभी हमें क्या करना है, ये वाली वैल्यू ऐड करनी है, टैग 1 डॉट टैग 2 और ये वाला सिंबल और नेम, बिकॉज उसमें हमें सेव कर देना है, वैल्यू सेव कर देनी है उसमें। तो हम ये जो स्ट्रिंग है इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम क्या ऐड कर रहे हैं, so we are adding tag 1 dot tag 2 and here we are adding name. ओके, तो अभी हमने इस की को तो फॉर्मेट कर लिया। ओके, तो हमने इस की को इसमें फॉर्मेट कर लिया। देन वी आर सेविंग दिस की नेम एंड वैल्यू, जो भी वैल्यू आ रही है उसको हम इस की नेम के साथ सेव कर रहे हैं एट्रीब्यूट्स में। ओके, सो एट्रीब्यूट्स ऑफ फुल इज इक्वल टू वैल्यू। तो ऐसा हमने सेव कर लिया। यार बहुत ही पेचीदा था एक्सप्लेन करना। चलो कैसा लगा आप बताओ यार, अच्छा लगा तो अच्छा, बुरा लगा तो पूरा। सो ये वाला कंडीशन हो गया, तो हमने ब्रेक कर दिया। अगर इसमें एक ही टैग में ज़्यादा वैल्यू और कुछ होंगे तो उसके लिए हमने फॉर लूप लगाया। इसको क्या हमने क्या बनाया ही नहीं है, हियर वी आर जस्ट डूइंग ब्रेक थिंग्स, इसको चेक करके ग्रेटर देन ऑपरेटर को। और ये एल्स वाला कंडीशन भी सेम ही पार्ट है। ओके, सो इसके बाद अभी हम क्वेरी ले रहे हैं। जस्ट वी आर टेकिंग अवर क्वेरीज थ्रू दिस फॉर लूप, देन वी विल फाइंड दैट इज दैट क्वेरी इज प्रेजेंट इन आवर मैप। ओके, अगर मैप में ये क्वेरी प्रेजेंट होगी तो हम क्या कर रहे हैं, एट्रीब्यूट्स ऑफ दैट की, वी आर प्रिंटिंग एट्रीब्यूट्स ऑफ दैट की, otherwise we are printing not found. Okay, so that's the thing. So मैं इस कोड का लिंक दे देता हूँ, गिट में डालता हूँ इसको। so थैंक यू यार, मैंने उस भाई के लिए बनाया था। ओके, सो उसको अगर समझ गया तो अच्छा है वो। ओके, सो I tried my best to explain this. Okay, so thank you.